डैश पर तशरीफ फरमा वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर असलम फारूकी साहब और डॉक्टर शिव प्रसाद साहब और आमिना मैडम और यहाँ पर मौजूद तमाम असातिज़ा और प्यारे स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सारे लोगों से आवाज़ शायद नहीं आई। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। Wish you happy 133 the birthday anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. Today we are celebrating 133 the birthday anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। Now friends, I know that since morning you have been listening to different people and as already I was told that there was some career guidance program by some of the expert career counselor. So really this is a good occasion that you are listening to different people and also you are going to see how we can plan for a career. So that was a session. Now this session particularly, because I have many things to present before you, but just a brief idea about the life sketch of Maulana Abul Kalam Azad and also what message we have to take. Only messages I will give you because the life sketch of Maulana Abul Kalam Azad, this is not the time that you will listen all those things. So briefly I will present before you. Dear friends, as you know that Maulana Abul Kalam Azad was a true patriotic politician, citizen, freedom fighter of India. He was born in 1888 and for our country he was a gem. As a freedom fighter he has done wonderful job. As a writer, wonderful job. As a scholar of Quran, wonderful job he has done. And many things are there in his fold to understand. As the topic is given to me is the woman empowerment. Today we are talking about women empowerment, how the women can be empowered. This is a big question before us. Because in India, we know that in some states, the women ratio is more than men and some states the men ratio is more than women. Anyhow, we have to think about how we can empower today's women, because in our society we have many instances, examples where we are found that there is a exploitation of women in some, maybe in domestic life or in the corporate life or the political life or a societal life. So how we can come across with all this type of exploitation? There are many things are there. The very important and strong weapon is the education. If education is there, women can be empowered. And that to education, it should not be an academic education. The education which can unfold many talents of the women. Such type of education is required. As just I am listening to our students, they are so well prepared. And I congratulate the staff members also that you have a good students and their presentation is really wonderful. And these 2-3 girls in English, they have spoken very nicely. Really be proud of you, because this is the new generation. We see the future in you. If you are good at speaking, presentation, and also you are so confident that we feel that our future is very good. If you are not concentrating in all these things and you are not developing yourself, again if you are like a traditional woman, again there is in our society there is a chance that again the men will be dominating and women again will be having the exploitation. So friends, the message of Maulana Abul Kalam Azad is that women should be empowered through education. That's why he has started
the papers at the tender age, not like this today what we are observing. The mass media, the papers and the communication media and many different platforms of WhatsApp and other YouTubes are dominated by the elderly people. Whereas Maulana Abul Kalam Azad, at the age of 12 years, he started his career as a spokesman. Think about how tender he was, and at the age of 12 years, he was the editor of 2 papers. One from Amritsar, another from West Bengal, Calcutta. He was editor. And people, great people like Sir Syed Ahmad Khan, Maulana Shubli, these type of great scholarly people, they invited him to become the editor of their paper. So friends, this is a model for us, because in every individual's life there will be some models. Maybe in your college you will be looking such type of great people in your lecturers and your professors. You can see Professor Aslam Farooqi Sahab is a model for you, because he not only teaches but also he encourages such people. He inspires the people, because I know he is very active on the WhatsApp and YouTube. He has uploaded many lectures. Even you can listen to him in the classroom, and also whenever you have leisure time, you can see or you can go through his YouTube lectures, and you can find very important lectures on his YouTube. This is the thing that you can make somebody else as your model in speaking, presentation, speeches, teaching, lifestyles, and problem solving. There are many people are there, friends, and great people are there. Like Maulana Abul Kalam Azad, he has inspired by his father first. His father was a Sufi saint person. Maulana Abul Kalam Azad अपने वालिद से पहले बहुत ही मरूब थे, वालिद की तालीमात से मरूब थे. मैं आपको बताता चलूँ एक छोटी सी मिसाल कि उनकी इब्तिदाई तालीम घर पे हुई, उनके वालिद साहब उनको पढ़ाए. कोई ऐसा जो है फॉर्मल स्कूल वो ज्वाइन नहीं करे, उनके वालिद से तालीम हासिल किए. और उनके वालिद ने सख्त मिजाज के थे कि सुबह फजर की नमाज से पहले उठाते. और मौलाना अबुल कलाम आजाद जब भी बाप की आवाज आती, मेरे दोस्तों आप याद रखो, जब भी बाप की आवाज आती, ఎప్పుడైతే ఆయన తండ్రి మౌలానా ఆజాద్ కి ఆజాద్ అని పిలిస్తే, without lapse of a single minute, even if it is a 4 o'clock or 5 o'clock, to offer the morning prayer that is known as Fajr, he used to wake up. But now what is our situation? अगर हमारे बाप या माँ सुबह काले 10 बजे से या 9 बजे से है, 8 बजे भी उठाए तो हम नहीं उठते. How we can become a inspiring person, a competent person, a talented person, a genius person? As one of the basic characteristics of Maulana Abul Kalam Azad was his geniusness. मौलाना का अबुल कलाम आजाद आज सारे हिंदुस्तान में यूजीसी जैसा इदारा कायम करने के लिए जो सबब बने, उसके बाद आईआईटीज का जाल उन्होंने बिछाया, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, साहित्य एकेडमी और बहुत से दीगर नाट्य एकेडमी वगैरह जो कायम करे. ये जहन मिला कहां से? उन्होंने अगर वो चाहते तो महात्मा गांधी के करीब, जवाहरलाल नेहरू के करीब, सरदार वल्लभ भाई पटेल के करीब, अंबेडकर के करीब, ये सारे लोगों के करीब थे, वो दोस्त थे पूरे. वो चाहते तो उनको और भी पोस्ट मिलते, फाइनेंस मिनिस्टर भी मिलती, लेकिन भाई ही हैज सेलेक्टेड द एजुकेशन मिनिस्ट्री. एंड व्हाई महात्मा गांधी और व्हाई जवाहरलाल नेहरू, व्हाई द अदर learned people has assigned him the duty of education is because he has the command over that particular subject. वो चाहते तो कोई भी जो है उनको मिनिस्ट्री मिल सकती थी, कोई भी पोर्टफोलियो मिल सकता था.
but he has selected education because he was a visionary person. He was a visionary person. मौलाना अबुल कलाम आजाद की बसीरत बहुत दूर तक थी, क्योंकि उन्होंने सारे यूरोप का दौरा किया था। उन्होंने बहुत से कंट्रीज पर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को, he has given a big sacrification of his personal life, and he has involved very actively in the Indian politics, particularly the Indian freedom struggle। यहाँ तक के टाइम भी कम है, मैं आपको मुख्तसर बोलूंगा कि यहाँ तक के, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर कि व्हाट इज हिज बिग सैक्रिफिकेशन। ही हैज सैक्रिफाइड हिज पर्सनल लाइफ इवन व्हेन ही वाज इन प्रिजन। हिज वाइफ वाज सो इल, और वो आखिरी दिनों में अपने शौहर को याद करते हुए वो दम तोड़ी, लेकिन ये जेल में थे। He was in prison। मगर बीवी कभी शिकायत नहीं करी कि मेरे शौहर मुझे देखने आते। बीवी एम्पावर्ड थी, उनका नाम भी जुलेखा। She was so empowered woman। So we have to take example of such type of women। अगर शौहर का साथ है तो भी we are empowered। अगर शौहर अपने husband, if he is in the service of mankind also, in our house we are so empowered। उनकी बीवी वो जेल में थे तो यहाँ वो आखिरी सांसें ले रही हैं। और एक बात उनकी मैं ये भी बताऊं कि जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जा रहे थे, हमेशा अपनी बीवी को जो है खुदा हाफिज बोल के जाते थे, और बीवी भी उनके खुदा हाफिज बोलते थे। आखिरी जब उनके जाने का, जब जेल को जा रहे थे, जब उन्होंने कहा कि खुदा हाफिज, तो उनकी बीवी को खुदा हाफिज बोले। वो ऐसा खुदा हाफिज बोले, लास्ट तक मेरी आवाज आ रही ना आपको, वो ऐसा खुदा हाफिज बोले कि मौलाना आजाद समझ गए थे जब कि ये शायद मेरे लिए ये आखिरी खुदा हाफिज है, और हकीकत में वैसे ही हुआ। उसके बाद वो आगे नहीं देख नहीं सके। 1938 में उनकी बीवी का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त वो जेल में थे, और किसके लिए क्या जुर्म था? कोई जुर्म नहीं था, सिर्फ इतना था कि अंग्रेजों को यहां से जाने के लिए he was fighting against the British ruler। This is only the mistake that he has done। और कोई गलती नहीं थी उनकी। वो यही गलती के ऊपर जो उनको सजा दी गई थी, वो जेल में थे। लेकिन एम्पावरमेंट की बात मैं आपको बता रहा हूं कि शौहर अगर ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए अगर वो काम कर रहा है, तो इट विल बी आवर ड्यूटी to support our husband, because tomorrow we are going to become wives। So you must remember that how great people were there। Even today also you are observing there are many people जो अपने लिए नहीं जीते हैं बल्कि मुल्क के लिए जीते हैं। तो वैसे सूरत में हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वही घर, वो औरत ये ना समझो कि बीवी ही होती है, ये ना समझो कि बीवी ही होती है। जैसा आपने सुना होगा कि अल्लामा इकबाल के तरक्की के पीछे उनकी माँ का हाथ था, उनकी वालिदा का हाथ था। रात के 2-2 बजे तक अल्लामा इकबाल भी बैठते। जब अभी हमारी किसी बच्ची ने बताया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रात में उठकर पढ़ते थे। अब ये मैसेज है आपके लिए कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ, हाउ यू कैन डेवलप योर टैलेंट्स। ये जो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की जो पढ़ाई है वो हमें बस नहीं होती। Whatever the formal education that you are getting in the classroom, this will become a marginal one। ये बिल्कुल हाशिए की तालीम है। Real education is the education where we can spend more time। You can refer many books, not only the textbook but also the reference books। If you refer this, then only you can develop your talents। तो मैं आपको बता रहा था कि हर औरत, हर मर्द की तरफ के पीछे एक औरत होती है। तो इसी तरह अल्लामा इकबाल के तरक्की के पीछे अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक या शायर कुरान थे। वो शायर कुरान के बनने के पीछे उनकी माँ का बड़ा रोल था। रात में जब अल्लामा इकबाल उठकर पढ़ते, डियर फ्रेंड्स, कल आप भी अपने बच्चों को देखना है, वुमेन एम्पावरमेंट।
कैसे एम्पावर होंगे? जो 8 बजे सो के 8 बजे उठने वाले हैं तो नहीं हो सकता। एम्पावरमेंट ये होता है कि वी शुड एलोकेट आवर टाइम इन 3 phases, 8 hours for academic development, 8 hours for the different development of your personality traits, and also 8 hours for your rest also. 3 सेक्शन में करना होगा। जब कहीं हम जो है अपने 24 घंटों को अगर बराबर करेंगे तो तब कहीं हो सकता है। आज देखिए, मैं अपनी मिसाल तो नहीं दूंगा कि मैं क्या था और कैसे हुआ, टाइम को हम कैसे एलोकेट करें। अब आपके पास टाइम है, you have time, try to allocate the time properly. How much time you are going to spend on education for learning, how much time for the development of your personality faculties, and how much time you are catering for your rest. All these 3 are required. But a genius person is a person who utilize his time properly. आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि अल्लामा इकबाल की वालिदा रात में अल्लामा इकबाल को पढ़ते हुए, लिखते हुए देखते तो वो यहाँ तक कि वो रोशनी वो खुद दिया लेके आते थे, उनके लिए पानी का इंतजाम करते। रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, 3 o'clock, midnight, 3 గంటకు, 3 o'clock also, his mother used to associate Allama Iqbal. Similarly, my friend, मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ ये हुआ कि उनकी बीवी, his wife, वो उम्र में भी छोटे थे लेकिन वो बराबर उनका साथ देते थे। और ये जोड़ी ऐसी थी मेरे दोस्तों, आपको बता रहा हूं, ये जोड़ी ऐसी थी जिस तरह आपने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरते जुलेखा को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ये उस किस्म की जोड़ी थी। इनकी बीवी का नाम भी जुलेखा, और ये चाहत में भी वैसी थी अपने शौहर से, यहां तक के घर में फाके भी रहते लेकिन कभी शिकायत नहीं करे। ये आपके लिए बहुत बड़ा सबक है, ये इट इज अ लेसन फॉर यू। His wife never demanded a single pie from Maulana Azad. Even sometimes there was a economical some problems were also there, but even though she has never complained against financial problems. वो होता है एम्पावरमेंट के माने। तो एजुकेशन है तो एम्पावरमेंट है, इसलिए आज आपके पास टाइम है, लिहाजा आप अपने आप को अच्छा सा बनाइए, एजुकेशन को हासिल करें, टाइम का टाइम मैनेजमेंट देखें, जैसा मौलाना आजाद ने टाइम मैनेजमेंट दिया। एंड ही इज ए मल्टीफेरियस पर्सनालिटी पर्सन। एट ए टाइम ही वाज ए बिग राइटर, ट्रांसलेटर ऑफ कुरान, फ्रीडम फाइटर, एंड मोर स्पेशली he was a person who wants to have a unity among all the communities of India. उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि अगर आज़ादी मुझे दी जाती है और ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाओ, तो मुझे आज़ादी की जरूरत, अगर even a angel comes and from the Qutub Minar he says that I will give you freedom, you just take off the unity of Hindu and Muslim. He said, I don't want such type of unity. I don't want such type of freedom. I want unity, he said. उन्होंने कहा था कि मुझे आज़ादी वैसी नहीं चाहिए जहां पर ये दो अलग होते हैं। तो इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद हमेशा हिंदू और मुस्लिम के इत्तेहाद के लिए, यूनिटी के लिए उन्होंने काम किया है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे मेरी ख्वाहिश है, द हिस्ट्री, मेरे फ्रेंड्स, आखिर तक मेरी बात जारी ना, द डेस्टिनी ऑफ द नेशन is being shaped in her classroom. ये बहुत बड़ा जो है आपको कोटेशन है मेरे दोस्तों। अब हिंदुस्तान का अगर हिस्ट्री बनाना है, डेस्टिनी बनाना है, हिंदुस्तान का फ्यूचर बनाना है, तो ये क्लासरूम है। दिस इज अ बिग प्लेटफॉर्म। पता नहीं आप में से कितने लोग होंगे कि अगर यूनिटी से रहेंगे आप, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये मिलजुल करते तो ये जो है हमारे को आजादी मिली।
कल आप में से भी कोई एक बड़े लीडर बन सकते हैं, आप में से भी कोई ऐसा हो सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के जैसे बनेंगे, आप में से भी कोई बड़े वकील बनेंगे जैसा अम्बेडकर थे, वाज अ बैरिस्टर, आप में से भी कोई महात्मा गांधी बनेंगे। आज भी जरूरत है, ये जो नॉन वायलेंस का बात है, आप में से भी कोई उसके जो है हो सकता है यू विल बी बिकम द मैसेंजर। आप में से भी कोई होंगे जो चाचा नेहरू के जैसी पॉलिसी उन्होंने लाई थी। हिंदुस्तान में जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी कहां से है आपको? दिस इज अ विजन ऑफ चाचा नेहरू, ये आ गया हिंदुस्तान में। तो ये आप में से भी बनेगी, इसलिए मेरी आपसे ख्वाहिश है, a small request I want to put before you, dear friend. The history of the nation is being shaped in a classroom. So मैं चाहूंगा कि आप अब जैसा बैठे, I am so happy that in this classroom we have many Muslims and many non-Muslims. So this type of unity should be retained. This is a flower. You can see this flower bunch. This flower, there are many flowers, many color flowers are there. It has become a bunch or a bouquet. Similarly, if you are united one, then there is no enemy to conquer us. कोई ऐसी ताकत नहीं होगी कि हमें बिछड़ा सकेगी। आज हर तरफ आप देख रहे हैं कि ये हो रहा, लेकिन हमारा जो देश है, भारत देश, ये देश की बुनियादें कौमी यकजहती पे, नेशनल इंटीग्रेशन पे इसकी बुनियाद है। अगर इसकी बुनियाद नेशनल इंटीग्रेशन पे नहीं होती तो ये देश इतना तरक्की नहीं करता। एक मर्तबा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट, ऑल दी कम्युनिटी शुड यूनाइट टुगेदर, देयर विल बी डेवलपमेंट। आज हिंदुस्तान का जो इत्तेहाद है, आज भी बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो दुश्मन बने हुए हैं हिंदुस्तान के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, लेकिन आप लोग हैं, यू आर द पीपल, we hope from you. If you are united one, then there is no power to divide Indians. Then there is no power to conquer us. हम इतने मजबूत होंगे कि आज दुनिया को टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान से जाती है। वैक्सीन भी आपने देखा होगा कि सबसे पहले हिंदुस्तान से भिजा दिया वैक्सीन। सारे जैसा कंप्यूटर का है, मेनी कंप्यूटर प्रोफेशनल आज दुनिया में फैले हुए हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान टैलेंट के लिए जाना जाता है। कुछ कंट्रीज हैं जो कुछ और चीजों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान, हमारा भारत देश जाना जाता है टैलेंट्स के लिए। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप कोशिश करो कि अपने टैलेंट को बढ़ाएं। अपने टैलेंट को बढ़ाना होगा, अच्छा पढ़िए और खास तौर पर अपने आप को मजबूत बनाइए, पावरफुल बनाइए। आपकी लैंग्वेज अच्छी होना चाहिए, आपको जो स्पीकिंग पावर आना चाहिए, राइटिंग पावर आना चाहिए, और साथ ही साथ आपका विजन बढ़ना। महात्मा गांधी का विजन था, इसलिए आजादी में उनका रोल बहुत अहम था। चंद दिन महात्मा गांधी जेल में थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद फिक्रमंद थे कि वो जेल में है। जब वो फिर बाहर आ गए तो वो विजन पे काम करे। चाचा नेहरू का विजन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विजन था, और आपने देखा अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का विजन था। ये सारे विजनरीज हैं। तो मेरी आपसे आखिरी बात ये है कि विजन रहना चाहिए आपके पास। अगर विजन है, then only you will get mission. If you do not have vision, my friends, if you do not have